Okay, see, another practical question related to marginal costing, but we are doing, remember, we are doing decision making problems. So this is not just applying formulas, but we need to comment on whether which one is better. Okay, now it is a question related to product discontinuation, whether the product should be continued or discontinued. We need to answer with that particular um, decision. Now see, yesterday we had done a problem which was related to examination scenario. Examination scenario. Now we are doing a sum which is related to product continuation or discontinuation. That means a company has four different products. Can you see figures in thousands are given? Company has four different products: product A, product B, product C, product D. Now all the sales are given 60,000, it is 10 lakhs, it is 50,000, it is 90,000, because figures in thousands is there, no? That is why. Cost of sales is also given: 350, 800, 370, 480. Storage area in square meters, boxes sold, and bills raised. There are three different items which are given. How we will use them, I will tell you, don't worry. But let us see how many expenses are given. Fixed overheads. There are fixed overheads also, there are variable overheads also. So let us see what are variable and what are fixed overheads. Fixed overheads are administration, salesman's salary, rent, depreciation. And it is given according to thousands, as per figures in thousand. It is given 10,000, 1,20,000, 60,000, and 20,000. Okay, so fixed overheads, it is given, suppose first 1 lakh. Suppose first is given 100 and three zeros will be 1 lakh, no? So 1 lakh is given only one time. It is not given four times for A, B, and C, D. No. What you have to assume is 1 lakh is fixed for every product. 1 lakh for A, 1 lakh for B, and same 1 lakh for C and D. Because fixed overheads is fixed, whether which type of product you produce, or or how much you produce. So it will be fixed. That is why it is known as fixed overheads. No. Next, salesman salary is 1,20,000, rent is 60,000, and depreciation is 20,000. Now some variable costs are also given. Commission is 4 percentage. Commission is 4 percentage, and 4 percentage on sales. Packing. Now please note, आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे तीन चीजें दी हुई है ऊपर, ये देखो क्वेश्चन में, स्टोरेज एरिया, बॉक्सेस सोल्ड, बिल्स रेज्ड. ये क्यों दिए हुए हैं ना, वो अब अभी आपको समझ जाएगा. देखो, वेरिएबल कॉस्ट कमीशन 4% ऑन सेल्स, तो ये रहा आपका सेल्स 6 लैक्स, 10 लैक्स, 5 लैक्स, 9 लैक्स, ये दिया हुआ है ना. तो इससे ये सेल्स है आपकी, इसका 4% निकालेंगे तो कमीशन मिल जाएगा आपको. अब पैकिंग मटेरियल देखो, पैकिंग जो करते हैं ना, वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं. पैकिंग इज 0.50 पर बॉक्स, मतलब एक बॉक्स होगा तो 0.50, 50 पैसा लगेगा. तो जो ए प्रोडक्ट है उसके कितने बॉक्सेस पर बॉक्स है ना, तो कितने बॉक्सेस हैं? 200. 200. तो 200 इंटू 0.5. अब बी प्रोडक्ट बी के कितने बॉक्सेस पैक हुए हैं? 300. प्रोडक्ट सी के कितने बॉक्सेस पैक हुए हैं? 150. यस. और डी के 350. तो जो जिसका नंबर ऑफ बॉक्स है उसको आप पैक कर रहे हो, तो एक बॉक्स का 0.5, तो 300 का कितना, 150 का कितना, 350 का कितना, एंड सो ऑन. समझ में आया कैसे करना है? पर बॉक्स बोला है ना, हम बोलते हैं ना, एक बॉक्स को पैक करने का खर्चा 1 रुपी है, तो 10 बॉक्सेस को पैक करने का खर्चा विल बी 10 रुपीज. 10 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई. बस ये वही तो है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, लॉजिक लगाना है. स्टेशनरी, अब स्टेशनरी का भी खर्चा हो रहा है, कितना? 0.20, 20 पैसा पर बिल. एक बिल पे स्टेशनरी का खर्चा 20 पैसा. अब ए प्रोडक्ट है, उसके कितने बिल्स बनाए हैं? 100.
100 बिल्स, सो 100 इंटू 0.20। बी प्रोडक्ट के कितने बिल्स बनाए हैं 120, सो इंटू 2.20, 0.20। एंड सिमिलरली फॉर डी एन, हम लैक्स लेंगे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सिमिलरली फॉर सी एंड डी। हम लैक लेंगे, लैक लैक मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 लाख इंटू। हाँ पर अभी मैं ऊपर से कॉमनली अगर लिखवा रही हूँ आपको फिगर्स इन थाउजेंड्स, तो 3 3 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 100 इंटू 0.20, 120 इंटू 0.20, समझ में आया? तो ओके। आंसर, आंसर सपोज 100 इंटू 0.20 और 20, तो वो 20,000 ही, तो बोलने में तो वो 20,000 ही होगा ना, पर हम उसको लिखेंगे नहीं 000। क्यों? क्योंकि हमने कॉमनली सम के ऊपर लिख दिया फिगर्स इन थाउजेंड्स, तो हमको यस मैम। बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट वेरी क्लियर ना? यस मैम। ओके, सो उसके बाद है आपका स्टेशनरी हो गया। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है इसमें, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब ध्यान देना, हाँ क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो सजेस्ट विच प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड, कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो मैं डिसकंटिन्यू कर दूं। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपको दिखने में लग रहा है कि ये तो लॉस दे रहा है बिल्कुल, मतलब कंपनी तो लॉसेस में चली जाएगी ये प्रोडक्ट की वजह से, इसको बंद करना ही सही होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई है प्रोडक्ट जो आपको लग रहा है बंद कर देना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, वो अभी पता लग जाएगा। देखो वेरी सिंपल, सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बना दो इनकम स्टेटमेंट। कॉलम्स कितने बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, और 4 प्रोडक्ट्स हैं तो ए बी सी डी, और एक लास्ट कॉलम टोटल का। ये टोटल का हम क्यों बना रहे हैं, देखने के लिए कि मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना है ओवरऑल। ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो कोई कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर टोटल का कॉलम नहीं भी बनाया इसमें कोई कंपल्सरी हम नहीं है। हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ मार्जिन कॉस्ट शीट लिखेंगे। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट शीट, और यू कैन सिंपली राइट इनकम स्टेटमेंट, जैसे उन्होंने पूछा है प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो आप भी लिखोगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, कंपनी का नाम ओके। होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। सपोज कंपनी का नाम दिया एबीसी लिमिटेड, तो आप भी लिखोगे इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, दैट्स इट। ठीक है, अब कॉलम्स कैसे बनाएंगे आप, पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड डी के 4 कॉलम्स, मतलब टोटल 5 कॉलम्स हो गए। टोटल आपको लगता है तो बना लेना, नहीं लगता है तो मत बनाना। ठीक है ना, मतलब वो इतना जरूरी नहीं है आपके लिए। अब आपको शुरू कैसे करना है, सेल्स। हमेशा याद रखो मार्जिनल कॉस्ट शीट शुरू कैसे होता है हमारा, सेल्स। सो सेल्स आपको ऑलरेडी, हाँ लेकिन आपको ये ध्यान देना है फिगर्स इन थाउजेंड्स, ये देखो इसने भी लिखा है फिगर्स इन थाउजेंड्स, ऊपर कॉमनली लिख देना, जैसे बार बार जीरोस देने की नीड ना पड़े। तो सबसे पहले सेल्स, देखो सेल्स सिर्फ कॉपी पेस्ट करना और कुछ भी नहीं है। सेल्स, ए का 600, बी का 1000, सी का 500, डी का 900, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर वाली टेबल में, बस उसको नीचे लेकर आओ एक फॉर्मेट में। ठीक है, लिया सारा सेल्स ले लिया, उसमें से COGS माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। अब उसमें से बाकी सारे खर्चे भी काट दो तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से पीएनएल नहीं बनाते हम, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमको नीचे लास्ट बैलेंसिंग फिगर मिलता है, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन। करते हैं नहीं करते हैं? तो बस यस वही तो मैम। करना है, अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अभी फिक्स्ड ओवरहेड्स भी है, वेरिएबल ओवरहेड्स भी है। आपको चाहिए तो हेडिंग दो, पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स फिर नीचे वेरिएबल ओवरहेड्स, आपको चाहिए तो मिक्स लिख दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता उससे। मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट देखना है। देखो मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो ये है कि मैं देखूं कौन सा प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, और कौन सा प्रॉफिट में से, कौन से प्रोडक्ट में से मुझे लॉस हो रहा है। तो जिसमें से लॉस होगा या जो मुझे प्रॉफिट अर्न नहीं करके दे रहा है वो मुझे डिसकंटिन्यू करना है। तो अल्टीमेटली तो मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए ना, कोई बात नहीं, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करो, आपको मिल जाएगा जीपी। जीपी में से अदर एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, जितने भी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं माइनस करते जाओ। जैसे एग्जांपल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, देखो नीचे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, दिख रहा है आपको। अब इम्पॉर्टेंट देखो क्या है,
टोटल एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे कितने हैं? 1 लाख। अभी ये तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना 1 लाख, ऐसे थोड़ी नहीं ए बी सी डी का अलग अलग दिया हुआ है। अभी 1 लाख तो एक एक का तो 1 लाख नहीं होगा, 1 लाख फॉर ए, 1 लाख फॉर बी, 1 लाख फॉर सी, 1 लाख फॉर डी, ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो फिर 4 लाख हो जाएगा ना। पर टोटल कितना दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड्स? आप मुझे बताएंगे टोटल खर्चा फिक्स्ड 1 ओवरहेड्स lakh. का। हाँ ए का, सॉरी टोटल। अब मुझे ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है, डी का निकालना है। तो बाजू में कॉलम बना हुआ है जिससे लिखा हुआ है बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग। दिख रहा है ये कर्सर मेरा क्वेश्चन में? Yes ma'am. हाँ, बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग। अब बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग मतलब अभी मुझे इसको स्प्रेड करना है। स्प्रेड इस 1 लाख को ए बी सी डी में स्प्रेड करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए कौन सा बेस लूं मैं? एडमिनिस्ट्रेशन है तो बिल्स रेज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है तो बिल्स रेज्ड। अभी बिल्स रेज्ड लूं मतलब ये ऊपर आपको दिख रहा है बिल्स रेज्ड, ऊपर वाली टेबल में यहाँ पे बिल्स Yes ma'am. रेज्ड में। हाँ, अब बिल्स रेज्ड का ना रेशियो निकालना पड़ेगा, रेशियो। अब रेशियो कैसे निकालते हैं ये देखो यहाँ पर। एक मिनट रुको, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का वर्कशीट बनाया ना, उसमें मैं आपको बता देती हूँ। देखो दिस इज सम नंबर 4 ना, ये देखो रेशियो ऑफ बिल्स रेज्ड। ये ना आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। हाँ, वर्किंग नोट नंबर से 1। ओके, so bills ratio of bills raised, A is to B is to C is to D। ठीक है, A का कितना है देखो बिल्स, सॉरी आई ओपन द क्वेश्चन। A का कितना है 100, B का कितना है, बिल्स की बात करी, बिल्स रेज्ड 100 120 80 100। so here you will write 100 is to 80 था कि 120 था, 120 सॉरी, 80 is to 100। अब कॉमन कैंसिलेशन करो, 0 0 0 0 कॉमन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 10 is to 12 8 हाँ is to 10। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? Yes ma'am. हाँ, तो 10 12 8 5 10। 6 4 5। वेरी गुड, इसको आप 2 की टेबल लगा के कट डाउन कर सकते हो, शॉर्ट डाउन कर सकते हो। सो 2 5 10, 2 6 12, 2 4 8 एंड 2 5 10 अगेन। अच्छा 5 6 4 5 इसको फिर से शॉर्ट डाउन कर सकते हैं क्या, कट डाउन कर सकते हैं? इसको No. नहीं और मैम। छोटा कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि 5 तो अभी वो क्या बोलते हैं इसे, सारा एक ही नंबर से जाना चाहिए। हाँ जी, वो सारा कुछ जो भी है वो एक ही टेबल से यूज होना चाहिए, ठीक है, या कट शॉर्ट होना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल रेशियो है 5:6:4:5। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका टोटल यहीं पे ही लिखना है वर्किंग 20। नोट में। यस, ये टोटल बड़ा काम का है, ये टोटल चीज है ना बड़े काम की है। कैसे बड़े काम की मैं बताती हूँ आपको। अब शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे रेशियो के लिए। हाँ, रेशियो के लिए। अभी एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का टोटल कितना है 1 लाख। अब 1 लाख को बिल रेज्ड के रेशियो में डिवाइड करना है। अभी देखो कैलसी में डालो 1 लाख डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू, ये एक ही बार डालने का, सॉरी डिवाइड बाय 20 इनटू, इज इक्वल्स टू नहीं इनटू, 1 लाख डिवाइड बाय 20 इनटू, इसमें से कोई साइन कोई नंबर वापस प्रेस नहीं करना, एक ही बार 1 लाख डिवाइड 20 इनटू, इनटू की साइन भी वापस प्रेस नहीं करना, एक ही बार। अब आपको किसका आंसर चाहिए 5 का, तो आप इधर लिखोगे 5 इज इक्वल्स टू, बोलो आंसर 1 लाख डिवाइड 20 इनटू 5 इज इक्वल्स टू, आंसर बोलो 25,000. 25,000। मतलब मुझे थाउजेंड्स में चाहिए ना, तो 25, मुझे आंसर थाउजेंड्स में चाहिए मतलब 25। अच्छा, अब आपने 5 का आंसर निकाला, अब मुझे 6 का आंसर बताओ। तो कैलसी पे कुछ नहीं करना, ये वापस रिपीट मत करना, ये वाला 1 लाख डिवाइड बाय 20 इनटू, ये मुझे नहीं चाहिए अब वापस, ये मैं ऑलरेडी कैलसी में इनपुट डाल चुकी हूँ। अब मुझे सीधा 6 इज इक्वल्स टू,
6 is equals to, आंसर बोलो. 30,000. वेरी गुड. सो आंसर मतलब मैं क्या लिखूं? 30. ठीक है. अब मुझे किसका चाहिए? 4 का चाहिए. 4 का. तो 4 is equals to 20,000. मतलब 20. 20,000. मतलब 20. ओके. और लास्ट फिर से 5 is equals to, आप फिर से 5 डालोगे ना, आंसर 25,000. सेम आएगा. हाँ, फिर से 5 डालोगे ना तो 5 का 5 से मैच होगा. 5 is equals to 25. सो देखो ये आंसर्स आ गए ना आपके. मतलब ये जो जहां तक मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये कैलसी में एक ही बार डालना है. 1 लाख डिवाइड बाई 20 इंटू की भी साइन मुझे नहीं चाहिए बार बार, नहीं तो आंसर्स गलत आएंगे. अब आपने क्या किया कैलसी में? 1 लाख डिवाइड बाई 20 इंटू. अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? 5 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू, आपके आंसर्स आते जाएंगे. और जो आंसर्स आते जा रहे हैं साइमल्टेनियसली आप लिखते जाइए. यहाँ पर ये देखिए 25, 30, 20, 25, टोटल 100. ये कॉलम ऑफ टोटल 100 इसलिए बनाया गया है कि एक बार वेरीफाई कर ले कि ये सारे सबका टोटल 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अभी अभी हमने निकाला ना ये 25, 30, 20, 25. ये देखो यहाँ पर मैंने भी वही निकाला 25, 30, 20, 25. आया समझ में कैसे इसका करना है? कॉलम में हम क्या डालना? हाँ, मतलब ये जो आप कर रहे हो ना, ये कैलसी पे कर रहे हो, ये यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखो मत, टाइम मत वेस्ट करो. ये रेश आपको वर्किंग नोट यहाँ से यहाँ तक बनाना है. आपको वर्किंग नोट यहाँ से यहाँ तक बनाना है. दैट्स इट. उसके बाद ये तो मैंने आपको कैलसी पे समझाने के लिए किया. कैलसी में मैम कैसे कॉलम में डालना नाम है? क्या लिखेंगे जो आंसर आएगा? 25, 30. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. सुनो मेरी बात, लेस सुनो अदर एक्सपेंस. सुनो सुनो. हाँ सुनो. सेल्स माइनस सीओजीएस किया तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला. ग्रॉस प्रॉफिट में से Yes. माइनस करेंगे ऑल एक्सपेंसेस, ऑल जितने भी दिए हुए, चाहे वेरिएबल हैं चाहे फिक्स्ड है. ठीक है. अभी शुरुआत करेंगे सीक्वेंस में जाके. सीक्वेंस में क्या दिए हुए? पहले फिक्स्ड दिए हुए एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप भी लिखोगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. अब ए कॉलम में लिखोगे 25, बी कॉलम में लिखोगे 30, सी कॉलम में लिखोगे 20 एंड डी के कॉलम में लिखोगे 25. और सबको टोटल करोगे तो आपको 100 ही मिलेगा. 100 मतलब जो ऊपर से मैच होगा. ये देखो 100 मतलब जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था. अभी समझ में आया? यस मैम. तो वैसा ही हम सेल्समैन सैलरी के साथ करेंगे. ये देखो सेल्समैन सैलरी कितना है? 120. 120 को मुझे सेल्स में डिवाइड करना है, तो सेल्स का रेशियो निकालेंगे. 600, 1000, 500, 900. ये देखो ये मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके मैं यहाँ पर ही आपको चेंजेस करके बताती हूँ. ठीक है, टाइम बचेगा ना. रेशियो ऑफ सेल्स, रेशियो ऑफ सेल्स A is to B is to C is to D. 600, 1000, 500, 900. So this is 600, this is 1000, 500, 900. तो मतलब अगर कट शॉर्ट किया, इसको कॉमन कैंसिलेशन कर दी जीरोस की, तो दो दो जीरो सबके चले गए. मतलब पहला बचा 6, दूसरा होगा 10, थर्ड होगा 5 और फोर्थ होगा 9. मतलब 6 is to 10 is to 5 is to 9. तो मतलब आप मुझे बताओ इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं क्या 6, 10, 5, 9 को? कोई ये कॉमन टेबल नहीं लग रही है ना? ना 3 की टेबल लग रही है, ना 10 की, ना 10 की, ना 2 की, ना 5 की. ठीक है, तो कॉमन टेबल नहीं लग रही है, मतलब ये मेरा फाइनल रेशियो है. 6 is to 10 is to 5 is to 9 का टोटल कितना होता है? 30. 30. 30. मतलब जब आप टेबल, जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना, ये देखो अभी नेक्स्ट कौन सा है? सेल्समैन सैलरी. तो 1,20,000 divided by 30 into 6 is equals to 10 is equals to 5 is equals to 9 is equals to. आंसर्स मिलते जाएंगे आपको. आ रहा है समझ में कि नहीं? Yes मैम. बेटर Yes, यू डू ma'am. इट विथ मी. बेटर आप मेरे साथ साथ करो. 24,000. हाँ हाँ, एक काम करते हैं ना, साथ साथ करते हैं. बनाओ, ये इनकम स्टेटमेंट बनाया है सबने? बनाया? ऊपर से Yes, लिखा ma'am. फिगर्स इन थाउजेंड्स. Yes. कम ऑन, स्टार्ट. सेल्स,
सबसे पहला ए का सेल 600, बी का 1000, सी का 500, डी का 900। ये चारों सेल्स लिखो, उसमें से COGS लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर दो। 350, 800, 370, 480। मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट्स के आंसर्स क्या आ रहे हैं? आप कैलकुलेट करके बताना, हाँ, स्क्रीन पे मत देखो। 250 A। 250 ना? हाँ। बी का? 200। सी? 130। डी? 420। वेरी गुड। अब बनाएंगे, ये आपको मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से लेस करो अदर एक्सपेंसेस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का आपने वर्किंग नोट बना लिया, ये वाला बनाया है मेरे साथ साथ कि टाइम दो बनाने का? बनाया है मैम, हो गया। बनाया ना, वेरी गुड बनाया। वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें से आपको रेशियो मिला 5:6:4:5। तो आपको कैलसी पे ये सारी डिटेल्स डालनी है और आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। आपके आंसर्स है 25, 30, 20, 25। डालो ये आंसर्स ABCD करके। ए में 25, बी में 30, सी में 20, डी में 25। अब आ जाओ सेल्समैन सैलरी, जो हमारा नेक्स्ट है। अभी अभी मैंने आपको बताया सेल्समैन सैलरी का बेस है रेशियो ऑफ सेल्स। तो रेशियो ऑफ सेल्स कितना निकला? 6:10:5:9, मतलब 30। तो अब सॉल्व कैसे करोगे? कैलसी पे डालो, मेरे साथ साथ करो। सेल्समैन वन सैलरी का अमाउंट कितना है? 120। सो डालो कैलसी में 120 डिवाइड बाई 30 इंटू 120 डिवाइड बाई 30 इंटू, अभी डालो 6 इज इक्वल्स टू, आंसर बोलो। 24,000। 24। लिखते भी जाओ, लिखते भी जाओ। 24 आंसर जो आया ना उसको लिखो, जैसे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही। अभी आप क्या करोगे? 6 के बाद क्या, 24 जो आंसर आया ना उसके बाद सीधा ये देखो जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया, 10 इज इक्वल्स टू, सीधा 40। 10, इंटू की साइन नहीं, डिवाइड की साइन नहीं, कुछ नहीं, सीधा 10 इज इक्वल्स टू, आंसर बोलो। 40। 40, वेरी 40। गुड। यहाँ पे दिख रहा है आपको 40 लिखा हुआ है। नेक्स्ट 10 के बाद है 5, 5 इज इक्वल्स टू, 20। वेरी गुड। एंड 9 इज इक्वल्स टू, 36। यहाँ पे देखो 20 एंड 36 दिख रहा होगा आपको, छोटा सा सेल्समैन सैलरी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में नेक्स्ट सेल्समैन सैलरी के बाद क्या है? रेंट। रेंट का बेस क्या होता है? एरिया। जितनी ज्यादा एरिया आप लोगे उतना ज्यादा रेंट भरना पड़ेगा, तो एरिया पे डिपेंड होता है ना। तो ये 60 है और एरिया का मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा 40, 60, 70, 30। ये रेशियो हम निकाल रहे हैं किसका? एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया। एरिया है 30, क्या था फिर से एक बार देख लेते हैं। 40, 60, 70, 30, सॉरी, दिस इज 40, 60, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, 70 एंड लास्ट इज 30। स्क्वायर फीट से हैं ये, 40 स्क्वायर फीट, 60 स्क्वायर फीट, 70 स्क्वायर फीट, 30 स्क्वायर फीट। अब इसका रेशियो मुझे कोई बताएगा? फर्स्ट 0 0 कॉमन कैंसिलेशन कर दिया, तो पहला 4:6, 20। 4:6:7:3। मतलब इसको कट शॉर्ट नहीं कर सकते ना मेरे ख्याल से। नहीं मैम, ये 20 आएगा नहीं। टोटल हाँ, बस। तो 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? रेशियो तो निकल गया। अब रेंट का टोटल अमाउंट कितना है? 60,000, मतलब 60, आप 60 पकड़ो, 60 डिवाइड बाई 20 इंटू 60 डिवाइड बाई 20 इंटू, 12। अब हाँ 4 इज इक्वल्स टू 12। 12। तो आपको लिखते भी जाना है, हाँ, नीचे स्टेटमेंट में 12, क्योंकि फिर से थोड़ी कैलसी पे आंसर निकालेंगे, जो निकलता जा रहा है उसको लिखते जाओ। नेक्स्ट 6 इज इक्वल्स टू 18। 7 इज 18। इक्वल्स टू 21। 21। 21 एंड 3 is equals to 9। 9। 9। यस, वेरी गुड। मतलब आप इधर से वेरीफाई भी कर सकते हो, ये देखो 12, 18, 21, 9, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे और करना है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बॉक्सेस सोल्ड,
कितने बॉक्सेस सोल्ड किए आपने? 200, 300, 150, 350। तो ये आप रेशियो बनाओगे बॉक्सेस सोल्ड, ठीक है। 200, 200, 300, 150, 350, 300, 150, 350, ठीक है। चलो अभी मुझे रेशियो बताओ इसका। कॉमन कैंसिलेशन करने पे एक एक जीरो कॉमन कैंसिल हो सकता है, तो 0 20, 30, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 35। मेरे हिसाब से 5 की टेबल लग सकती है क्या? कट शॉर्ट कर सकते हैं yes इसको? Yes, yes. तो Yes, 5 4 ma'am. जा, 5 6 6 जा, is to 3 5 is to 3 3 जा is to 7. एंड 5 7 जा। कॉमन टेबल लग रही है ना, तो कट शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोई टेबल Total लग रही है 20. नहीं. तो 20, वेरी गुड। इसका टोटल कर देने का 20। अब 4:6:3:7 मतलब अमाउंट क्या है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 20, तो निकालो, कैलसी में डालो 20, सॉरी क्या था, हाँ 20 डिवाइड बाय 20, टोटल भी 20 है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी 4. 20 है, ठीक है। सो 20 डिवाइड बाय 20 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4. 6 इज इक्वल्स टू मैम सेम ही होगा ना. क्योंकि 6. 20/21 आया ना, देखो 20/21, हाँ, तो 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 6 मैम 6, सब रेशियो का ही आ रहा हाँ है. 4 6 3 7 आंसर वही आएंगे आपके। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं सॉल्यूशन में। डेप्रिसिएशन देखो 4 6 3 7 आ रहा है ना बराबर, और सबको प्लस किया तो 20 आता है, बराबर है। अभी आ जाओ पैकिंग मटेरियल। नेक्स्ट पैकिंग मटेरियल, नेक्स्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस ना, नहीं सॉरी पैकिंग नहीं, कमीशन, सॉरी पैकिंग नहीं, कमीशन। कमीशन इज 4% ऑन सेल। इसके लिए कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। राइट डाउन कमीशन, कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, डेप्रिसिएशन के नीचे लिखेंगे कमीशन, ब्रैकेट में लिखो 4% ऑफ सेल्स, ब्रैकेट में लिख दो 4% ऑफ सेल्स। अब देखो आपका ए का सेल्स कितना है? 600, कैलसी में डालो 600 का 4%। 24,000. हाँ 1000 नहीं, 600 का 4% क्या होता है? 24 24. हाँ तो आप लिखोगे 24 ही ना बच्चा, आपको लिखना 24 ही है, चेक करो इधर भी 24 है। अभी नेक्स्ट बी का सेल्स कितना है? 1000, तो 1000 इंटू 4%, 40. 40, 40. वेरी गुड, लिखते भी जाओ। हाँ बी का 40। सी सेल्स कितना है? 500 इंटू 4%, 20. 20, 20. 20 20, वेरी गुड। एंड डी 900 इंटू 4%, 36 वेरी गुड, हो गया। कमीशन कितना सिंपल था देखो। नेक्स्ट पैकिंग मटेरियल 0.50 पर बॉक्स, तो लिखो नीचे लिखो पैकिंग मटेरियल, कमीशन के नीचे लिखो पैकिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे 0.50 इंटू नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्योंकि पर बॉक्स है ना, तो मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ब्रैकेट में लिखेंगे, आई रिपीट, 0.50 इंटू नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब करते जाओ मल्टीप्लाई, 0.50 इंटू ए का नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है? 200, तो बोलो 200 इंटू 0.50, 100 100। अब बी 0.50 इंटू बी का बॉक्सेस कितने हैं? 300, 150 यस वेरी गुड। नेक्स्ट सी 0.50 इंटू बॉक्सेस कितने हैं सी के? 150, 75 75,
and last 0.50 into D number of boxes 350. 175. 175. Very good. ओके हो गया, पैकिंग हो गया. अभी स्टेशनरी पे आ जाओ. स्टेशनरी है 0.20 पर बिल. पर बिल अभी देखो बिल्स कितने हैं 100 120 तो सो ऑन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे. लिखो स्टेशनरी ब्रैकेट में 0.20 into bills raised. 0.20 into bills raised. तो बोलो 0.20 into A का कितना बिल्स है 100. 20. 20. B का 0.20 into 120. 24. 24. C 0.20 into 80. Bills raised 80. 16. 16. 16. And last 0.20 D का bills raised 100. 20. 20. ठीक है, हो गया. ये पैकिंग मटेरियल स्टेशनरी सब हो गया. अब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे. करो ये सारे एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करके मुझे नेट प्रॉफिट बताइए. ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने से आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट. बताओ नेट प्रॉफिट बताओ मुझे. फर्स्ट ए का 45. यहाँ पे मुझे 41 दिखा रहा है टेक्स्ट बुक में. खैर प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है बट स्टिल चेक योर आंसर्स. बाकी सबका भी 45 ही आ रहा है क्या? No, ma'am, 41. मैम ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? ये सारे खर्चे जो भी अभी खर्चे लिखे ना हमने एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टेशनरी तक का ना? हाँ हाँ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर स्टेशनरी तक आपको सारे खर्चे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने हैं तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट. 41 आ रहा है मैम. हाँ करेक्ट है. 41 करेक्ट है. बी का निकालो. 108. Yes, what is the answer of B? 108. Negative कि पॉजिटिव? प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? बोलो. Ma'am, 108 minus में. नेगेटिव आ रहा है. माइनस में आ रहा है मतलब ब्रैकेट डालना पड़ेगा. 108 नेगेटिव आ रहा है ये मतलब लॉस हो रहा है आपका 1,08,000 का प्रोडक्ट बी का. चलो प्रोडक्ट सी का निकालो. 45. 45 Minus का 45. ये आप 45 नहीं बोल सकते हो इसको. गलत आंसर दे रहे हो आप. -45 बोलने का. इसको लिखने का कैसे? ब्रैकेट 45 बोलेंगे कैसे? -45. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो लॉस 45. प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ है. हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट ही पर्टिकुलर्स कॉलम में बट उसको ब्रैकेट में दिखा दिया मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है. और लास्ट डी का कितना हो रहा है? 112. हाँ ये प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है तो आपको देख के ही पता लग रहा है कौन सा प्रोडक्ट मुझे डिसकंटिन्यू करना चाहिए. ठीक है तो जो लॉसेस हो रहे हैं वो प्रोडक्ट मुझे डिसकंटिन्यू करने का. बी एंड सी. तो आप नीचे नोट में लिखो बी एंड सी प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड बिकॉज इट